हेलो बच्चों, कैसे हो? चलो नेक्स्ट वीडियो में आ गए हम। और पिछली वीडियो में हमने ये वाले वर्ड्स किए थे, आगे बढ़ रहे हैं उसी क्रम में। ठीक है, लेट्स गो टू द नेक्स्ट वर्ड कमिंग फ्रॉम ए लेटर दे, यू नो. So if we talk about the words that have been completed so far, I want to know, I want you to please tell me how many words have you done so far. I mean, all those words that I am talking about are inbuilt in your mind so far or not. So please keep on telling me everything about the words. Are you getting the words in proper way or not? And if you feel anything difficult regarding words or the usage of the words there, so put the comment in the comment box there, you know. And if you feel any problem regarding grammar, like you cannot find the error, you cannot spot the error in the sentence given there, so you can ask me the question, and you can send me the question on WhatsApp or any other source there. So just start the class. In the previous class I have discussed accomplish, and other related words there. I am moving to the next word that is very important, that is asked in your exams like your SSC, CGL, Steno, MTS, bank exams, other exams like UPSC, defense. So there are so many exams there. You can see all these words that I am discussing over here. All these words can be asked in your exams like I talked about. So every word has its own usage, has its own place where it is to be used. So please don't be mistaken, ever if you talk about the words usage and the usage of the word there. So what you have to do first, you have to just use the word that I am talking about. I mean, suppose I'm gonna study any kind of word here and I'm teaching that word to you all. So you are not getting the proper usage of the word there. So what you do with this word then? Do you literally cram? Do you literally mug it up? No, that is not to be done now. What you have to do is, what you have to do first, you have to just remember that word. You have to remember the place of the word being used, you know. You have to just use that word in your social life, because every word has its place in your social life, but you don't know the place exactly. So use this word that I'm going to discuss over here, and every word that I have discussed in the previous classes there, you know. So let's talk. The next word is एक्रीमोनियस. ठीक है बच्चों, अगर मैं एक्रीमोनियस की बात करूं तो इसमें है क्या, OUS आ रहा. पहली चीज, शब्द को देखते ही मुझे क्या नहीं चाहिए समझ में कि वो वर्ड कैटेगरी वाइज क्या है. I mean, उसकी क्लास क्या है. जब हम क्लास डिसाइड कर देते तो हमें पता होता है कि ये इस जगह यूज होगा, है ना. मतलब वर्ड आपके पास हो जाएंगे, आप उन्हें यूज नहीं करोगे तो ऐसे होने का क्या फायदा है. तो हम इसकी अगर बात करें तो ये एडजेक्टिव वर्ड होता है. I mean, OUS वाले वर्ड जिसका सफिक्स OUS होता है वो मोस्ट प्रोबेबली, या मैं उनकी बात अगर करूं, ज़्यादा से ज़्यादा वो एडजेक्टिव की तरह यूज़ होते हैं. एक आध वर्ड ऐसे भी होता है जो नाउन की तरह भी यूज़ हो सकता है, बट डिपेंड करता है सिचुएशन पे. डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन दैट यू आर यूजिंग दैट वर्ड इन ए नाउन फॉर्मेट और एन एडजेक्टिव फॉर्मेट दे, ना. सो वी आर टॉकिंग अबाउट जस्ट द कैटेगरी ऑफ द वर्ड दैट वी सी एट फर्स्ट साइट. हम पहली नजर में क्या देखते हैं, दैट इज कॉल्ड एडजेक्टिव. ओके, लेट्स मूव टू द अदर एस्पेक्ट ऑफ द वर्ड देयर. So if we talk about the other meaning of the word acre, acre की अगर बात की जाए तो acre जो होता है ये थोड़ा सा एक टेस्ट को बताने वाला वर्ड है. मतलब रिश्तों में भी जा सकता है, कहीं भी जा सकता है. टेस्ट को बताने वाला वर्ड है. एक रिलेशन के किस तरह से आप किसी भी चीज़ को रिलेट करते हो उसको
उसका एक टेस्ट क्या बनता है उसको समझाता है वर्ड। तो एक्री का मतलब कड़वाहट से भी हो जाता है, कड़वाहट से, या पंजेंसी से भी हो जाता है, पंजेंसी या स्ट्रिंजेंसी मतलब तीखापन, उससे भी हो जाता है। तो इसके पहले तो हम मीनिंग देखते हैं। कटु, तीक्ष्ण, तीखा या कशैला, ये तो इसके मीनिंग चलेगी। कशैला, तीखा, कशैला, ये सारे इसके मीनिंग हो गए बच्चों। तो ये तो हिंदी के हिसाब से हो गए। देखिए हर जगह जरूरी नहीं हिंदी का मीनिंग एक जैसा ही, मतलब दो शब्दों का अगर हिंदी मीनिंग एक ही है तो उनका मीनिंग वो एक शब्द नहीं हो सकते, एक जगह यूज होने वाले शब्द नहीं हो सकते। जैसे मैं आपसे कहूँ कि मान लीजिएगा एगो की बात करूँ, एगो, या मैं कहूँ बिफोर, तो इनका मीनिंग तो एक ही है, से पहले, लेकिन ये यूज अलग अलग तरीके से होंगे, है ना। तो जरूरी नहीं आप हिंदी पे ही डिपेंडेंट होकर इंग्लिश को पढ़ो। हिंदी एक माध्यम होना चाहिए, मतलब डिपेंडेंसी मत बनाओ, मतलब आप एक तरह का इस पे ही फोकस मत करना कि मीनिंग के हिसाब से चीज़ों को जज करना, क्योंकि मीनिंग के हिसाब से चीज़ें जज करोगे तो आपको नाउन भी एडजेक्टिव की तरह यूज होता हुआ दिखाई दे जाएगा। तो मीनिंग के हिसाब से नहीं चलना, कंसेप्ट के हिसाब से चलना। तो ये तो इसका मीनिंग चला गया, ठीक है। इसके मैं इसे पढ़ूंगा कैसे, लैटिन वर्ड है, वर्ड लैटिन है, रूट इसका लैटिन है। और अगर हम इसकी बात करें तो इससे बहुत सारे और भी वर्ड बनेंगे, रूट है ये, तो इससे बहुत सारे वर्ड बनते चले जाएंगे। हम क्या क्या डिस्कस करेंगे शब्द के बारे में कि ये वर्ड कैटेगरी वाइज क्या है, वी हैव डिस्कस्ड what we are going to discuss now. We are just going to discuss the meaning of the word, that also discussed. If we talk about the synonyms of the word, because we will be asked the synonym of the word in the exams, so we have to be able to give the answer there, you know. So there would be 4 options given, so there would be one of them would be the synonym of the word given, so we have to tick, we have to hit that word there. So before that we have to have the synonyms of this word. So let's talk about the synonyms here, okay. पहला सिनोनिम की अगर हम बात करें, दूसरे की बात करें, तीसरे की बात करें, वो बनते चले जाएंगे। अब ये बात ध्यान रखना कि एक्रीमोनियस का मतलब ये है कि कटु, तीक्ष्ण, तीखा, कशैला। कैसे तीखा, कशैला, कैसे कटु? मान लीजिए हमारे रिश्ते होते हैं लोगों के साथ। मान लीजिएगा आपका कोई दोस्त है, आपका कोई भाई है, या कोई भी है, ठीक है, तो उससे आपकी लड़ाई हो गई या कुछ भी हो गया, दोस्त से लड़ाई हो गई। अब आपकी मम्मी ने कहा कि बेटा जा, तेरे अब लड्डू बच गए हैं शादी के, जरा अपने उसे दोस्त को दे दिया। देखो मम्मी उसकी बात मत करा करो, तुम उसकी बात मत करा करो, उसकी बात होनी चाहिए मेरे घर में आज के बाद, पहले बता रहा हूँ मैं। क्यों बेटा, तुझे कैसे छौंक लग रहा, तुझे कैसे छौंक लग रहा है एकदम से, तुझे कैसे डंक सा लग रहा है? तो वो वाला रिश्ता, मतलब रिश्ते की एक स्थिति ऐसी पहुंच चुकी है आपको कि गांव में कह देते हैं, शायद बच्चे कुछ नहीं समझ पाए, गांव में कह देते हैं कि गांव में या शहर में भी कहीं भी बोल देते हैं, तुझे कैसे दिक्कत हो रही है, उससे क्या दिक्कत होगी तुझे? तो वो जो रिलेशन आपका बन चुका, अच्छा कहीं तो रिलेशन था ऐसा कि जब बेटा अपने दोस्त को लड्डू दे, हाँ मम्मी मैं जा रहा हूँ लड्डू दे के आऊँगा अपने दोस्त को, ये प्यार वाला है। जब बेटा अपने दोस्त को लड्डू दे, नहीं तूने किसी बात कर दी तो उसकी बात मेरे घर में नहीं करती। तो जब आपको किसी से एकदम से गुस्सा आ जाए, डंक लग जाए, कांटा सा लग जाए, जिसकी नाम लेते ही गुस्सा सा आ जाए, तो उस तरह के रिलेशन को एक्रीमोनियस रिलेशन कह देंगे, कशैला। तो जितने भी वर्ड चुभने वाले, विष वाले, कशैले, तीखे वाले, कड़वे वाले होंगे, वो सारे सिनोनिम बनेंगे। अब वो बहुत सारे हो सकते हैं, वो वोकैबुलरी भी आपको आनी चाहिए। अब उनमें से कोई एक वर्ड ऑप्शंस में दिया होगा, उनका अगर आपको पता है तो आप टिक कर दोगे, नहीं पता तो वही बात है, वोकैबुलरी वीक है आपकी, तो आंसर भी नहीं कर पाओगे। तो चलो उन वर्ड्स पे आ जाते हैं, एक एक करके डिस्कस करेंगे और सारे डिस्कस करेंगे बच्चों। चलो रे, पहला वर्ड हम देख लेते हैं, क्योंकि एकदम से किसी की बात करते ही हमें गुस्सा आ रहा है, यानी कि उसे डंक सा लग रहा है।
जैसे कि मान लीजिएगा पतंगा सा लगना, पतंगा, तुझे कैसे पतंगा लग जाता है, एकदम से उसकी बात कर। देखो हमारा और उसका रिलेशन अब एक्रीमोनियस है ना, उसकी बातें मुझे एक्रीमोनियस लगती है, मतलब चुभती हैं एकदम से। चुभती कौन सी चीज़ है? जो कड़वी होती है, जो तीखी होती है, जो कशैली होती है, विषैली होती है, ऐसी ऐसी चीज़ें चुभ जाती हैं। जैसे कि मान लीजिएगा बहुत लोग हमारे दोस्त फैमिली में होते हैं या रिश्तेदारों में होते हैं, जब उनकी बात आती है तो यार उनकी बात मत कर, तो एकदम से चुभती हैं वो उसकी बात। तो वो जो रिश्ता आपका है वो दैट इज़ कॉल्ड एक्रीमोनियस रिलेशन। चलिए एक एक करके बात करते हैं। तो तीखापन होता, तेजपन होता, तो पहला वर्ड अगर हम उठाएं तो बड़ा ही अच्छा वर्ड है इंग्लिश में, एस्ट्रिंजेंट। ASTRINGENT, एस्ट्रिंजेंट। ये वर्ड मैंने पुरानी वीडियोस में ए में करा दिया है, लेकिन चूंकि यहाँ सिनोनिम आ गया दोबारा से रिपीट हो रहा है, तो आप ये ध्यान रखना एस्ट्रिंजेंट। अब हम एक एक करके वर्ड को और को कवर करेंगे। एक वर्ड और लिखिएगा, रैंकरस। रैंकरस, RAN, ये कड़वाहट को बताने वाला, मतलब वो जो विष होता है ना, मुंह में विष होता है ना, विष, तो वो विष को रैंकर कह देते हैं। इस रैंकर का जो एक वर्ड इंग्लिश में होता है, एक इंग्लिश में शायद मैंने बताया भी होगा, इंग्लिश में शायद सुना होगा रैंकल आपने। एक वर्ड आपने शायद सुना होगा रेंसिड। तो रैंकल माने सड़ना, और रेंसिड माने सड़ा हुआ। ये मैं बता चुका हूं पुरानी वीडियोस में, ठीक है। वोकैबलरी जब अपने लास्ट पड़ाव पे होगी, जब पूरी जवान हो जाएगी वोकैब, तो इसमें सब कुछ होगा। यानी कि जब मैं पूरा करा चुका हूँ सिलेबस, तो आपको सब सुने हुए लगेंगे, आपको ऐसा नहीं लगेगा। वोकैब की एक दुनिया आपके अंदर डेवलप हो चुकी होगी, वो डेवलप्ड दुनिया ही आपको एग्जाम तक ले जाएगी, जॉब तक ले जाएगी। तो रैंकरस, RANCOROUS, ये वर्ड आपके हो गए। एस्ट्रिंजेंट का मतलब, एस्ट्रिंजेंट एक टेस्ट होता है, तेजाब जैसा। जैसे तेजाब को अगर थोड़ा चख के देखो आप, तेजाब होता, गांव में चख लेते थे पहले हम। गांव में बैटरी होती थी बड़ी बड़ी 12 वोल्ट वाली, तो जैसे टीवी देखते थे उसमें चिमटी जब लगाते थे तो वो थोड़ा सा मुंह से साफ कर लेते थे उसे, तो टेस्ट बड़ा अच्छा आता था। तो उसको हम एस्ट्रिंजेंट टेस्ट कहते हैं। तो स्वाद होता है एक तरह का, रैंकरस होगा। तो रैंक, अच्छा इसका मतलब रैन का RANC का मतलब सड़ा हुआ, रैंकल माने सड़ना। तो जो सड़ी हुई चीज़ों का टेस्ट आएगा, सड़ने के बाद चीज़ एसिडिक हो जाती है, ये ध्यान रखना। इसीलिए सड़ी हुई सब्जी मत खाया करो, रुकी हुई सब्जी मत खाया करो, उनमें एसिड जनरेट हो जाता है, उनकी क्षारता कम हो जाती है, तो उन्हें ऐसा, ठीक है चलो। और एक चीज़ और, जैसे मैं आपसे कहूँ कि आपने उसका टेस्ट देखा होगा, क्या नाम है, लहसुन का टेस्ट होता है, लहसुन का, या आपका गार्लिक टेस्ट भी होता है। तो ये जो एकदम से वैसे टेस्ट होते हैं, लगने वाले टेस्ट होते हैं, इनको हम पंजेंट भी बोल देते हैं। तो पंजेंट भी सिनोनिम बन जाएगा। तो आपका नेक्स्ट आपका सिनोनिम बनेगा पंजेंट। मतलब पंजेंट में PUN आ रहा है, तो ऐसा समझिएगा, ऐसा टेस्ट जो आपको पनिश कर रहा है। मतलब स्वीट कभी भी पनिश नहीं करता, स्वीट तो अच्छा फील कराता है, लेकिन पंजेंट में पन जो है, इस पन से इंग्लिश में तमाम सारे वर्ड हैं, जैसे कि पनिश तो है ही, जैसे कि इम्प्यून है, IMPUNE है, और साहब आपके जैसे कि प्यूनिटिव है, प्यूनिटिव, PUNITIV, प्यूनिटिव का मतलब दंडात्मक, मतलब दंड देने से संबंधित, पनिशेबल। तो आप ऐसे ध्यान रखिएगा, पंजेंट बन गया, और भी बन जाएंगे। रेजर आपने देखा होगा, रेजर होता ना, है ना, तो रेजर से बना दी, उसकी जो धार होती है उसको एज, उससे एक एडजेक्टिव बना, उससे बन जाएगा। तो एक वर्ड लिख सकते हो आप चाहो तो, रेजर एज्ड, रेजर एज्ड, जिसकी एज माने किनारा, जिसकी एज रेजर जैसी हो, रेजर माने काटने वाला जो होता। अच्छा, इसी RAZ से एक इंग्लिश में वर्ड बन जाता है रेज। रेज माने क्रोध,
यानी कि आग बबूले वाला क्रोध, गुस्सा, ठीक है। तो ये हो गया। एक कॉस्टिक बना सकते हो आप, कॉस्टिक, ये सिनोनिम बना लोगे आप। तो आप एक्रीमोनियस को ध्यान में रखते हुए वर्ड को सोचो। अच्छा, ये कब सोचोगे? जब आपकी वोकैबुलरी अच्छी होती है, तभी तो आप रिलेट करते। सिनोनिम कोई नई चीज तो है नहीं, सिनोनिम तो एक रिलेशन है, मैचिंग है, मैच कराने का सेंस है। तो आप मैच कराते जाओ, जो मन में आता रहे, जो वर्ड मैच करने वाला हो वो यहाँ पे लिखते रहो। ऐसे तो है नहीं कि सिनोनिम्स आपने वो बताया, भैया सबका अपना अपना हिसाब होता है। और सिनोनिम आपको तभी अच्छे होते हैं आपके, तभी आप सिनोनिम कर सकते हो जब आपको वोकैबुलरी में वर्ड्स बहुत आते हो, तभी तो रिलेशन सेट करोगे आप, वरना कैसे सेट करोगे आप? अच्छा, तो ये हो गया एसर्विक एक वर्ड। इस एसी से इंग्लिश में वर्ड उठा लेता हूं मैं, एसर्विक। इसी एसी से एक वर्ड और उठाता हूं मैं, एक्रिड, ACRID, ACRID, ACRVIC, ये हो गया, ठीक है। शार्प कह सकते हो आप, तेज, शार्प, जैसे चाकू की धार बड़ी तेज होती है तो चुभती तो है ना, चुभ जाती है, तो शार्प होगी तो चुभेगी, चुभेगी तो लगेगी। ऐसे रिलेशन जिस पे आप टिंटना जाओ, उसे हम शार्प भी कह सकते हैं, एसिडिक कह सकते हैं, एसिडुलस कह सकते हैं। एसिड से बना दो एक, एसिडुलस, एसिडुलस हो गया। ठीक है बालकों, ऐसे और भी बना सकते हो। कड़वा वर्ड भी आपका छोटा सा है, लिख लो इसे, बिटर, बिटर लिख सकते हो आप। ये तो कड़वा है, कड़वा तो खुद चुभता है। हार्श हो गया, सरकास्टिक हो गया, ये बहुत सारे वर्ड लिख लीजिएगा। हार्श, हार्श, सरकास्टिक। हार्श का मतलब चुभने वाला। हार्श का मतलब होता है जो आपको अनकंफर्टेबल फील कराए। जैसे मान लीजिए आपने किसी का हाथ पकड़ा, तो हाथ एक तो पकड़ना होता है ऐसे करके यूं, तो जेंटल है, ये तरीका जेंटल है। एक बड़ा अरे राम होता भैया देखिए मेरा हाथ छिल जाएगा, थोड़ा सा आराम से, है ना, तो धीरे से, तो जेंटली, जेंटल, हार्श, जेंटल, हार्श, जेंटल, हार्श। मैंने उसको धीरे से तमाचा लगाया, जेंटली स्लैप किया, हार्श कस के मार दिया, तो वो जो दुख दे, है ना, वो हार्श। सरकास्टिक, सरकेज़म से बना है। सरकेज़म एक वर्ड होता है इंग्लिश में, सरकेज़म। सरकेज़म का मतलब व्यंग्यात्मक, व्यंग्यात्मक मतलब ताने से भरा, ताने का मतलब चुभने वाला। ताना चुभता है, तो ये आप ध्यान रखना, ताना चुभ जाता है। लोगों को ताना मार दो आप तो चुभ जाता है, तो चुभने वाली चीज़ों को सरकास्टिक कह दिया आपने। तो ये वर्ड आपके हो गए। और लिखिएगा, और लिखिएगा आप, शार्प हो गया, हार्श हो गया, सरकास्टिक हो गया। ये आप, स्कैदिंग एक वर्ड होता है जो ये जो आपका वर्ड मैंने कहीं लिखवाया था, एक वर्ड इंग्लिश में होता है स्केयर। स्केयर का मतलब होता है बेटा डराना। ये एक तरह की क्रिया है, वर्ब है, डराना। तो इसका मैंने इसके उठा लिया। अच्छा, इंग्लिश में इसके से बहुत सारे वर्ड हैं, जैसे स्केयर, स्केयर हो गया, स्करलस हो गया, स्कलरी हो गया, स्कम हो गया, बहुत सारे इंग्लिश में वर्ड मिल जाते हैं। तो इससे एक ऐसे एक वर्ड मैं बना रहा हूं आप लोगों के लिए, स्कैदिंग। स्कैदिंग, स्कैदिंग का मतलब भी नुकसानदायक हो सकता है, नुकसान पहुंचाने वाला, हार्मफुल। परनीसस एक वर्ड लिख सकते हो आप, परनीसस, परनीसस, ये सिनोनिम बन जाएगा इसका, क्योंकि हार्मफुल है। परनीसस मैंने शायद पुरानी वीडियो में किसी में बताया होगा। परनीसस का मतलब होता है नुकसान पहुंचाने वाला, यानी कि जिससे आपको घाटा हो, डेट्रीमेंटल। डेट्रीमेंटल लिख लो, एक वर्ड और लिख लीजिएगा, डेट्रीमेंटल, डेट्रीमेंटल, MEN है यहाँ पर, MEN, तो डेट्रीमेंटल हो गया। तो ये आपके वर्ड्स बढ़ते चले जा रहे हैं, ठीक है। कोई ऐसा भी हो गया जो चुभने वाला, एक वर्ड शार्प से, इससे एक वर्ड और लिख लीजिएगा, कट, कटिंग। आपने एक वर्ड और लिख लिया, कटिंग, कट करने वाला, काट दे, वो एक्रीमोनियस ही होगा। छील दे, जैसे छिल जाए हाथ, तो वो भी आपका इसका एंटोनिम सिनोनिम बन सकता है।
ऊपर वाला वर्ड मैं मिटा ले रहा हूँ क्योंकि मुझे सिनोनिम अभी और भी लेने हैं, चलेगा। ठीक है बच्चों, और लिखिएगा आप। नेक्स्ट वर्ड है आपका, बड़ा पेपर में आता है ये वर्ड, तुम्हारे लिए फेमस है और जो एसएससी सीजीएल स्टेनो की जो तैयारी कर रहे हैं, एनडी पेंडी बच्चों, वो सब के लिए बहुत अच्छा है। ट्रेंचेंट। देखिए ट्रेंच जो होती है वो एक खोदने को बोला जाता है या सिक्योर करने के लिए यूज होता है। चलो ये वर्ड मैं टी में पढ़ाने वाला हूँ, इसमें ज़्यादा टाइम लग जाएगा आपको। इसमें रूट होता है TREN, तो इसे हम बाद में कर लेंगे। ट्रेंचेंट का मतलब होता है चुभता हुआ। ठीक है बच्चों, एक वर्ड और लिखिएगा इधर, एक MORDENT करके वर्ड आ जाता है इंग्लिश में, मोरडेंट, MORDANT। MOR वाले वर्ड बहुत सारे हैं इंग्लिश में, जैसे कि मॉर्गेज, मोर्टेलिटी, मोर्टल और मोरोज, मोरॉन और मोर्टिफिकेशन, मोर्टिफाई और पोस्टमॉर्टम और एंटेमॉर्टम और आपके मोर्टीन। तो ये बहुत सारे वर्ड हैं इंग्लिश में। तो आगे बढ़ जाओ। तो नुकसान नेगेटिव वर्ड है, नुकसान पहुंचाने वाला है, हानिकारक टाइप हो गया। ठीक है, एक इंग्लिश में आपने देखा होगा कोरोना चल रहा है। कोरोना एक वायरस है। वायरस की जो नेचर होती है वो छीलने वाली होती है, जहर की तरह फैलता है। तो वायरस से VIR उठा के मैंने एक वर्ड बना दिया, वीरुलेंट। तो साहब ये वर्ड आपका बड़ा फेमस है, वीरुलेंट। तो ये आपका वीरुलेंट हो गया। ठीक है, थोड़े से और लिखिएगा वर्ड, स्पाइटफुल। ये भी अच्छा वर्ड है। स्पाइट का मतलब होता है नफरत करने वाला, नफरत से भरा। तो नफरत से भरा एक नेगेटिव सेंस है, मतलब जैसे उसने किसी की बात करी तुम्हें गुस्सा आ गया, तो वो स्पाइटफुल है, यानी कि एक्रीमोनियस आपका उससे कोई रिलेशन है। तो स्पाइटफुल भी, ये सब पेपर में मिलेंगे आप लोगों को। स्पाइटफुल हो गया। और लिखिएगा विशस वाइस से आया है। वाइस माने बुरा या छोटा, नीच, VICE आपने शायद सुना होगा, उससे वर्ड बन जाता है विशस। नेक्स्ट वर्ड पे आ जाते हैं, चलेगा। नेक्स्ट वर्ड है क्रैब्ड। देखो ED वाला वर्ड है बच्चों, तो एडजेक्टिव है, क्योंकि एडजेक्टिव के ही सिनोनिम ढूंढ रहे हैं हम। क्रैब्ड हो गया। नेक्स्ट पे आते हैं, एक वर्ड मैंने शायद यहाँ कहीं विट्रियोलिक पढ़ाया होगा। विट्रियोलिक कहीं बताया क्या बच्चों? VITRI नहीं लिखा, तो लिखिएगा विट्रियोलिक, और हो तो मत लिख लेना, विट्रियोलिक। ये बड़ा ही वर्ड अच्छा है, विट्रियोलिक। ये इससे इंग्लिश में बहुत सारे वर्ड बन जाते हैं VIT से। जैसे कि VIT से एक वर्ड बन जाता है विशिएट, एक वर्ड बन जाता है विटुपरेट, एक वर्ड बन जाता है ये जो हमने यहाँ पे विट्रियोलिक करा। ये तीनों वर्ड इंग्लिश में नेगेटिव वर्ड होते हैं, नेगेटिव। तो ये ध्यान रखना आप, इन्हें अभी डिस्कस नहीं कर रहा, जब बात आएगी तब कर लेंगे। अभी तो मैं जो लिखवा रहा हूँ वो लिखिएगा आप। नेक्स्ट वर्ड पे आ गए हम। ये सिनोनिम्स हो गए। जो भी कनेक्टेड वर्ड हैं, जो भी टेस्ट को, नेगेटिविटी को शो करेंगे इस तरह वाली, वो इसके सिनोनिम बनेंगे। चलिएगा, एक वर्ड और लिखिएगा, सवेज। सवेज भी अच्छा वर्ड है, ये भी हो जाता है। सवेज का मतलब गंवारूपन से होता है, नेगेटिविटी को शो करता है, गंदे सेंस को बताता है, जाहिलपन को बताता है। तो ये वर्ड हो गया आपका। एक जहर से बना लो, जब बनी रहे तो जहर भी कड़वा होता है, पॉइजनस हो गया। ठीक है बच्चों, अब मैं नीचे वाले वर्ड मिटा दूं। चलेगा, नीचे वाले वर्ड मिटा देता हूं। नेक्स्ट वर्ड पे आ जाते हैं हम। एक और लिख लेते हैं, हेट फिल्ड।
जो नफरत से भरा होता है। नफरत से भरा का मतलब वही जो हेट्रेड से भरा है, हेट फील्ड बोल देते हैं। हेट फील्ड एक क्रिया भी होती है, नफरत से भरना। पॉइजन को हम जहर भी बोल देते हैं, मतलब जहर का मतलब वेनम, तो वेनमस कर सकते हो आप इसे, वेनमस। मीन हो सकता है एक सिनोनिम, मेलाइन हो सकता है, मीन नीच, मेलाइन हो सकता है, मेलिसस हो सकता है, ये सिनोनिम बन जाएंगे। होस्टाइल हो सकता है, एंटीपैथेटिक हो जाएगा, ये वर्ड अच्छा है, एंटीपैथेटिक। एंटी का मतलब उल्टा, पैथी का मतलब सफरिंग, और ऐसा इंसान जो उल्टा सफर करता है, मतलब जो आपको अच्छा लग रहा है वो उसको बुरा लगता है, जो आपको बुरा लग रहा है वो उसको अच्छा लगता है, उसको बोल देते हैं हम। एक वर्ड और लिख लीजिएगा, नेस्टी वर्ड अच्छा चलता है इंग्लिश में, नेस्टी इसका सिनोनिम बन जाता है, नेस्टी, NASTY। एक और लिखिएगा, इल नेचर्ड, जिसकी नेचर बुरी हो, इल नेचर्ड। स्प्लेनेटिक एक वर्ड इंग्लिश में बड़ा फेमस है, स्प्लेनेटिक, स्प्लेनेटिक, ये भी इंग्लिश में बड़ा अच्छा वर्ड है, ठीक है बच्चों। इल नेचर्ड हो गया, स्प्लेनेटिक हो। स्क्विंट आइड लिख लीजिएगा एक वर्ड, स्क्विंट आइड। स्क्विंट का मतलब तिरछा, ऐसे लोग नहीं होते कुछ लोग, तो ऐसा वाला रिलेशन, तो इसे स्क्विंट आइड कह सकते हैं, भैंगा भी बोल देते हैं, तिरछा बोल देते हैं। स्लैशिंग लिख लीजिएगा, एक स्लैशिंग वर्ड होता है, स्लैशिंग। एक और लिख लीजिएगा, इरेजिबल, इरेजिबल। डंक मारने वाला भी अच्छा वर्ड है, एक डंक लग जाए किसी को, स्टिंगिंग। स्टिंग माने डंक मारना होता है, तो डंक वाला ही सेंस है। मोडेसस एक वर्ड और लिखिएगा, कहीं भी लिख लीजिएगा, इधर लिख लेते हैं, मोडेसस। ये तुम्हारे पेपर में CGL VGL में जो बड़े एग्जाम है मेंस के, उसमें मिलते रहते हैं वर्ड, वो क्या बहुत आती है। एक और लिख लीजिएगा, ये जो मैंने कहीं लिखवाया था वेनम, ये वेनम, इसकी एक क्रिया होती है वर्ब, ऐसे करके, एनवेनम। एनवेनम माने किसी को जहर देना। अब हमें चाहिए एडजेक्टिव, तो एडजेक्टिव क्रिया के दो तरीके से मिलता है, या तो ING लगाकर या उसकी थर्ड फॉर्म बनाकर। तो ING लगाकर तो हम एक्शन को उस तरह में प्रभावी बना रहे हैं, लेकिन एक्शन पहले से चल रहा है, हो चुका एक्शन है, तो ED लगाइएगा, तो ED, एनवेनम्ड। तो ये वर्ड आपका हो जाता है। एक शायद आपने कहीं सुना हो, एक ततैया होता है, ततैया सुना होगा आपने। तो उसे देख के ही जहर जैसी फीलिंग आती है, चुभने वाली फीलिंग आती है, गर्मी वाली फीलिंग आती है, तो उसको हम उसको बोलते हैं हम WASP, वॉस्प। तो अब इससे एक वर्ड बना सकते हो, एडजेक्टिव, ISH लगा दो इसमें, वॉस्पिस एक इंग्लिश में वर्ड है, ऊपर वाले मिटा रहा हूं मैं। वॉस्पिस कर दो, ISH लगा दो बस, क्योंकि ये तो नाउन है, वॉस्पिस। एनवेनम्ड, इरेजिबल, मोडेसस। तो ये आपके वर्ड हो गए ये सारे, ठीक है। इसमें कोई भी ऐसा वर्ड नहीं है जो आपको समझ में नहीं आ रहा। देखिए, इल का मतलब बुरा, एंटी का मतलब उल्टा, PATH, अगर किसी शब्द में PATH आ जाता है या PATHY आ जाता है तो उसका मतलब होता है बच्चों सफरिंग। सफरिंग माने बर्दाश्त करना या झेलना।
तो अगर आपका झेलना दूसरे से उल्टा है तो इसका मतलब वो आपका दुश्मन है। आप मतलब जैसे आप अच्छा झेल रहे हो उसे बुरा लग रहा है, तो दुश्मन ही होगा, वो नेगेटिव सेंस छोड़ जाएगा। तो ये आपके सारे वर्ड हो गए, ठीक है, ये सिनोनिम हुए। अच्छा, इरेजिबल, ये IR, इससे इंग्लिश में बहुत सारे वर्ड हैं, जैसे कि पहला अर्क, दूसरा अर्कसम, तीसरा इरिटेट, इरिटेंट, तो ये नेगेटिव वर्ड है, क्रोध वाले वर्ड हैं, तो ये टाइम पे आने पे हो जाएंगे डिस्कस। तो ये आपके सारे वर्ड्स हो गए, सिनोनिम तो हो गए भैया। अब आते हैं इंग्लिश में। अच्छा, ये वर्ड मैं बता दूं आपको, कभी बच्चे कुछ सोचें कि ये पता नहीं बताया नहीं। विशेट माने किसी चीज़ को गंदा करना या किसी चीज़ को दूषित करना, दूषित करना। विटुपरेट माने गाली, गाली या कोई भी चीज़ की बदनामी, है ना, उसको हम कह देते हैं। तो ये सिनोनिम हो गए। अब इसके एंटोनिम पे आ जाते हैं। एंटोनिम आ गया। एंटोनिम का मतलब कि हमें किसी के नाम से ही गुस्सा आ रहा है। जैसे कि आपने देखा होगा जब अखिलेश यादव और मुलायम सिंह के बीच में थोड़ा सा टकरार आई थी, एक तरह की टकरार का मतलब समझते हो आप, स्पैट, एक इंग्लिश में वर्ड होता है SPAT। स्पैट माने थोड़ा सा मनमुटाव, कॉन्फ्लिक्ट। तो जब वो आया था तो उस टाइम पे उनके रिश्ते जो थे वो एक दूसरे से तिड़क रहे थे, वो एक दूसरे टिंटना रहे थे, वो एक दूसरे का नाम से गुस्सा थे। तो वो जो रिलेशन उस टाइम पे उनका बन गया था वो एक्रीमोनियस रिलेशन था, है ना, मेल मिलाप वाला रिलेशन नहीं था, है ना, वो थोड़ा सा उनका नेगेटिव रिलेशन हो गया था। जैसे कहते हैं ना, ये दो भैया हैं, जब तक इनकी शादी ना हुई तब तो दोनों में बड़ा ही प्यार था, बहुत प्यार था, लेकिन जब से दोनों की शादी हुई है ना, एक दूसरे से इनका जो रिश्ता है वो मतलब प्यार वाला नहीं रहा, ज़मीनों पे लड़ जाते हैं कभी कभी, एक्रीमोनियस हो गया, हाँ, तीखा रिलेशन हो गया, कड़वा हो गया रिलेशन। तो इसका उल्टा क्या है? शादी से पहले जो रिलेशन था मीठा वाला, मेल मिलाप वाला, प्रेम भाव वाला। तो इसके एंटोनिम प्रेम भाव वाले बनेंगे। पहला एंटोनिम की अगर हम बात चल रही है तो पहला एंटोनिम बना लेते हैं हार्मोनियस। एक्रीमोनियस का जो हम एंटोनिम बना लेंगे वो हार्मोनियस हो जाएगा, ठीक है, चलेगा। पहला तो ये बन गया। आगे बढ़े, एक तरफ ही लिख लेते हैं, ज़्यादा एंटोनिम नहीं होते। दूसरा हो गया स्मूथ, स्मूथ। So smooth can be the antonym of this word also. So harmonious, हारमनी से बना है, हारमनी, HARMONY, हारमनी एक वर्ड होता है इंग्लिश में, हारमनी इससे बना है। हारमनी का मतलब समन्वय, यानी कि एक तरह का रैपर्ट, RAPPORT। हारमनी का मतलब प्रेम, एक तरह का सौहार्द, सौहार्द। तो ये वर्ड बन जाते हैं आपके। नेक्स्ट वर्ड पे हम आ गए। तो स्मूथ का मतलब जो एक तरह से सॉफ्ट रिलेशन है, उसको हम स्मूथ कह सकते हैं, स्वीट कह सकते हैं। मैंने बिटर पढ़ाया था तो यहाँ स्वीट लिख लो आप। स्वीट माने एक तरह का मीठा, चुभता हुआ नहीं है, चुभता हुआ नहीं है, मीठा है। वहाँ इल नेचर्ड भी लिखवाया था, यहाँ गुड नेचर्ड लिख लो, गुड नेचर्ड। तो ये लिख लीजिएगा आप। प्लेजेंट लिखिएगा, जो खुश करे आपको, प्लेजेंट, ये हो गया प्लेजेंट। प्लीज, प्लीज करने वाला, प्लेजेंट कहाँ से आया है? प्लीज से। प्लीज माने किसी को खुश करना, तो खुश करने वाला यानी कि अच्छा होगा, किसी की नाम
बात करें तो खुशी आ जाए, तो एंटोनिम है, ठीक है। ब्लैंड कह सकते हो आप, ब्लैंड, ठीक है, ये भी अच्छा वर्ड हो जाता है, ब्लैंड, इसका एंटोनिम बना सकते हो आप। तो ये आपके सिनोनिम है। रैपर्टफुल भी कह सकते हो आप। तो बेटा ये सिनोनिम, सॉरी एंटोनिम हो गए। यूज मैंने बता दिया कैसे यूज करना वर्ड को, सिनोनिम एंटोनिम हो गए, वर्ड की स्पेलिंग आपको पता है, और वर्ड का यूसेज मैंने कई बार डिस्कस कर लिया, ठीक है। तो इस तरह से हम वर्ड्स को कवर करते हैं। सो दिस वर्ड हैज़ बीन फिनिश नाउ, आई मीन आई हैव डिस्कस दिस वर्ड हियर। सो व्हाट यू हैव टू डू, यू जस्ट हैव टू कीप remembering this word all the while. So everywhere when you're just moving somewhere, you just have to have phone with you, and just keep watching the videos that I have made in your app there, you know. So just keep watching, and जो भी आगे की वर्ड्स हम करने जाएंगे उनको भी साथ साथ आप एक एक दिन के गैप से करते रहिएगा, ताकि बर्डन ना बने, और ग्रामर भी पढ़ते रहिएगा, ग्रामर का भी बैच बन जाएगा और ग्रामर भी पढ़ते रहिएगा बच्चों, ठीक है। खुश रहिएगा, स्वस्थ रहिए।